کی گئی ہیں 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 152 جو ہے عورتیں قتل کی گئی ہیں اور 65 جو ہے 65 مرد ہیں. تو ٹوٹل ملا کے 217 جو ہے سیاہ کاری کے الزام میں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں. 217 2022 میں ایک ایسی چونکا دینے والی فگر ہے کیونکہ جو 5 سال کا ہمارا ریکارڈ ہے اس میں ہم نے 200 سے لمٹ کبھی کراس نہیں ہوئی, ہمیشہ 150 168 170 کی فگر آتی ہے. لیکن اس سال 2022 میں جو ہے 217 جو ہیں عورتیں اور مرد قتل کیے گئے ہیں, جس میں 152 جو ہیں عورتیں ہیں اور 65 جو ہیں مرد ہیں. اس سال جو ہے جیکم آباد جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سر فہرست ہے, جس میں 20 عورتیں اور 16 مرد قتل کیے گئے ہیں. 36 جو ہے آنر کلنگ پہ افراد قتل کیے گئے ہیں. اس کے بعد کشمور ہے جس میں 21 جو عورتیں ہیں وہ قتل کی گئی ہیں اور 6 مرد ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں. تو ٹوٹل ملا کے 27 جو ہیں عورتیں اور مرد قتل کیے گئے ہیں. جیکم آباد کشمور کے بعد گھوٹکی آتا ہے جس میں 23 افراد قتل کیے گئے ہیں. پھر شکارپور آتا ہے, لاڑکانہ ہے, خیرپور ہے, سکھر ہے اور دوسرے جو اضلاع ہیں وہ ملا کے 217 جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں. تو یہ جو فگر ہے میرے خیال میں چونکا دینے والی بات ہے کہ سندھ میں جو عورتوں کا پوسٹ جاری ہے وہاں جو ہے ایف آئی آر پہلے جو تھی وہ 50% جو ہے ایف آئی آر درج ہوتی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ عورت ایکٹیوسٹ جو ہیں کراچی میں اور حیدرآباد میں سکھر میں وہ آواز اٹھا رہی ہیں, تو ان کی وجہ سے 80% 90% جو ہے ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. لیکن ان ایف آئی آر کا کیا کریں کیونکہ وہ اکیوز جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے, مین اکیوز جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے اور وہ ایف آئی آر جو ہے اس میں پراپر سیکشن نہیں لگاتے. 302 کا سیکشن لگاتے ہیں تو 311 کا سیکشن نہیں لگاتے جو نان کمپاؤنڈیبل سیکشن ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہی خاندان والے جو ہے چاچا جو ہے وہ قتل میں ملوث ہوتا ہے اور ان کے جو ہیں بابا جو ہیں وہ فریادی ہوتے ہیں اور آگے چل کے وہ جرگہ ہو جاتا ہے, ان میں صلح ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ہم جو ہے ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور ہم سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ جرگے نہ ہوں پھر بھی عورتوں کے جرگے ہو رہے ہیں. رقوم جو ہے ان کی جو ہے وہ طے کی جاتی ہیں. جیکم آباد میں 4 دن پہلے جو ہے 3 بچیاں جو ہے سنگ چٹی میں دی گئی ہیں, جس میں 5 لاکھ دنڈ جرمانہ رکھا گیا ہے اور 3 بچیاں دی گئی ہیں. ایسے گھوٹکی میں ایک عورت جو ہے میں اس کا نام نہیں لوں گی, شر ٹرائب کی ایک عورت ہے جس کو قتل کر کے اس کا لاش جو ہے دریا میں ڈبو دیا گیا ہے. ان کو 1 منتھ گزر گیا ہے لیکن ان کی لاش ابھی تک نہیں ملی. جب تک لاش نہیں ملے گی تو ان کا میڈیکل کیسے ہوگا, اور میڈیکل نہیں ہوگا تو فریاد جو ہے ایف آئی آر جو ہے کس بیس پہ رجسٹر کریں گے. تو یہ ساری پیچیدگیاں ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, والدین کی ورثہ کی طرف سے ہوں, یہ ہو رہی ہیں اور ان میں عورتوں کا جو کوس ہے, عورتوں پہ جو ظلم ہے وہ جاری ہے. جو ہے میرے خیال میں میڈم انیس بات کریں گی اور اس میں مرد بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے, میڈم اس پہ بات کریں گی. وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, صرف عورتوں کا نہیں ہے بلکہ وہ آپ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ اس معاشرے میں صرف عورتیں نہیں رہتی, مرد بھی رہتی ہیں. اور یہ جو واقعات جتنے خوفناک طریقے سے ہو رہے ہیں کہ چھری سے گلا کاٹ دیا, دوسری طرف پھینک دیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, دریا میں ڈال دیا, بوری میں بند کر دیا, ہتھوڑے سے مار دیا, بندوق سے مار دیا, یہ ایک بہت ہی بیمار معاشرے کی سمبل ہے, سائن ہے. اسی بیمار معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی رہتے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں بھی یہی پروان کریں گی. لیکن جو جانا چاہتے تھے اس کو چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں, اور جو جانا چاہیں گے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ آپ کی ایلیٹ ہے, یہ ٹاپ براس ہے جو کہ وقتاً فوقتاً کبھی جزیرے خریدتے ہیں, کبھی بڑے بڑے جہاز خریدتے ہیں, کبھی کچھ خریدتے
जायदादें बनाते हैं और चले जाते हैं। आपने और हमने अक्सरियत ने यहीं रहना है। तो इस माशरे में जो हो रहा है उसकी तकलीफ भी हमको है और शायद उसके लिए कुछ करना, उसका तदारुक भी हमारे हाथ में है। ये जो सारी बातें हो रही है इसकी बुनियादी वजूहात 2-3 है मेरे नज़दीक। एक तो ये कि तालीम की बहुत कमी है। बड़े अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में भी यहाँ तालीम की इतनी ज़्यादा कमी है। जब तालीम नहीं होती तो अवेयरनेस भी नहीं होती, अवेयरनेस भी बहुत कम है। अब बहुत हद तक सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे केसेस आगे पहुंच जाते हैं और उनकी कुछ अवेयरनेस भी हो जाती है। लेकिन जो चीज़ लैक करती है, जो मेरे अपने तजर्बे में आई है, वो फॉलो अप। जब कोई इस किस्म का केस होता है जैसे नूर मुकद्दम का हुआ था तो सब एक्टिव हो जाते हैं, आप लोग भी हो जाते हैं। उसकी रोज़ खबरें आती हैं कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, ज़ाहिर जाफर का की तस्वीरें आती हैं, ये सब। लेकिन थोड़ा अरसा गुजरता है तो मामला ठंडा पड़ता है। अरसा किस लिए गुजरता है कि आपको शायद जस्टिस मास्टर ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में जो सिस्टम है, अरसे से इस पर बात हो रही है कि इस प्रोसेस को सीज किया जाएगा। जो केसेस होते हैं वो बरसा बरस जाते हैं, एक नस्ल ख़त्म हो जाती है, दूसरी नस्ल। सिविल केसेस का तो हाल ही नहीं पूछे, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस भी हैं उसमें भी जो है इतना वक्त लगता है कि लोगों के पास ना पैसे होते हैं वकीलों के लिए, ना वक्त होता है, ना अदालतों पे चक्कर लगाने के लिए वो अपनी जो रही सही नौकरियां हैं वो छोड़ सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम बहुत गड़बड़ है। फिर जो दियत का सिस्टम है, देखिए हमने कई बार ये पिछले 40 साल से मुतालबा रहा है, विमेंस एक्शन फोरम का भी रहा है कि अगर आप दियत का कानून जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो औरतों के खिलाफ वायलेंस के केसेस हैं जिसमें उनका बहीमाना कत्ल है, कारोकारी है, ऑनर के नाम पे मार देना है, क्योंकि एक बेइज्जती है माशरे के लिए, कोई ऑनर की बात नहीं है ये। तो कम अज़ कम ऐसे केसेस पे दियत का एप्लीकेशन ना हो जी, तो वो उसको नॉन कंपाउंडेबल करे। लेकिन वो नॉन कंपाउंडेबल जहाँ किया भी गया तो वहाँ एक इतना ढीला ढाला वो रख दिया गया कि वो ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और ये कौन अपने मुझसे कहता है कि अब मैंने इस इज्जत के लिए खत्म किया। पहले तो शायद कहते थे लोग, लेकिन अब नहीं कहते। तो ये जहालत, कानून का सही नहीं होना, अदलिया की तरफ से इंसाफ न मिलना, ताख़ीर होना, ये सारे वो मसाइल हैं जिनकी वजह से और तो क्या हम अपने मुल्क में यही सारी दुनिया को यही बताएंगे कि हम में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, हम बहुत बड़ी कौम है, हम सबको कत्ल कर देते हैं, हम जो भी हमसे एग्री नहीं करता उसका भी हमें यही सोल्यूशन नजर आता है कि उसको जान से मार दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना आप लोग ऐसा माशरा चाहते हैं ना हम ऐसा माशरा चाहते हैं। तो आज हमारे जो भी मुतालबे हैं सब इसमें दर्ज हैं और एक खौफनाक सूरत हाल जो सामने आई है वो आयशा को मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की और ये सामने लाई कि 152 औरतें कत्ल हुई हैं और 65 मर्द, दोनों की तादाद मिला के 217। ये सारे के सारे एक्ट शौक के बेगुनाह लोग। अगर जिस मुल्क में बेगुनाह कत्ल होंगे तो क्या वो मुल्क रह सकता है? ये हम सबके सोचने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपना काम कर रहे हैं, मुस्तकिल हम ये इशू उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोग बिल्कुल सही जो पिक्चर है वो सामने रखें और ये बताएं कि ये बहुत खौफनाक हालात हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं, कोई सेवरेंस ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई भी किसी को सड़क पे कत्ल करके चले जाए, चाहे आप में से कोई हो या मैं हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और गरीब वल्नरेबल तबके के लिए जिनकी अक्सरियत है उनमें। तो इसके लिए एक जंग की ज़रूरत है, इसके लिए एक जहाद की ज़रूरत है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैडम बैठी हुई हैं, मैं खुद उनकी मेंबर हूँ, तो कमेटी मेंबर हूँ। हमने काफ़ी कोशिश की थी कि हम सरदारों को बुलाएं और बातचीत हो कि आप जो जगह करते हैं, आपका जो कबायली कानून है, तो बेकसूर औरतों को आप मारते हैं इज्जत के नाम पे, अना के नाम पे। इज्जत क्या सेल्फ रिस्पेक्ट औरतों की नहीं होती, मर्दों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या उस सोच की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और एक बात मैं वाज़ेह कह दूँ कि फेमिनिस्ट या हम जो एक्टिविस्ट हैं या ऑनर किलिंग पे जो काम कर रही हैं, वो मर्दों के खिलाफ नहीं है, वो सोच के खिलाफ है। जो सोच जो है जिसमें औरतें कत्ल की जाती हैं, हरासमेंट का शिकार होती हैं, जहाँ औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो उस सोच की वजह से हो रहे हैं। तो हमें उस सोच को टॉलरेट करना है, उस सोच को ख़त्म करना है। और जो कबायली निज़ाम है उसे मुकम्मल हम नामंजूर करते हैं कि ये जो सरदारी निज़ाम है ये ख़त्म होगा, एजुकेशन बढ़ेगी और जो है अवेयरनेस होगी। ये जो सेशन है मेरे ख्याल में वो देहात में होने चाहिए, गांव में होने चाहिए, स्कूल्स में होने चाहिए। और अवेयरनेस सेशन जो हमारे कमीशन मेंबर्स हैं बैठे हुए हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ सेशन करवाएं, औरतों को भी अवेयरनेस हो और मर्दों को भी अवेयरनेस मिलने की ज़रूरत है। वही सरदार जो हैं, वही जागीरदार जो अपने ज़िले में वडेरे भी होते हैं, वही अपने ज़िले में जो है MNA होते हैं, MPA होते हैं। तो कोई केस हमारा हल नहीं पाता, सॉर्ट आउट नहीं होता मसला, FIR दर्ज होती है, आगे चल के जो केस है वो ऐसे ही मौमा बन के रह जाता है। वही MNA, वही MPA, वही सिटिंग हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वही जो और पार्टियों में बैठे हुए हैं। एक सरदार का बेटा एक पार्टी में बैठा हुआ है, दूसरे सरदार का भाई जो है दूसरी पार्टी में बैठा हुआ है। तो जब वो उन्हें पता चलता है कि हमारे गांव में एक लड़की ऑनर के नाम पे कत्ल हुई, तो पुलिस भी मैं ये बोलूँगी ज़रूर कि पुलिस, वहाँ का SHO, बाला ऑफिसर ना भी हो लेकिन निचली सतह पे करप्शन हो रही है। वो पैसे तय करते हैं, वो सरदार पैसे तय करते हैं और उनका जो है मुँह फूका हो जाता है, वो केस ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। 2 साल पहले 5 औरतें घोटकी जिलों में सिर्फ दरिया में लाशें उनकी बहा दी गई थी, तो उनकी अभी तक लाश नहीं मिले, और कश्मीर ज़िले में लेडी जो है डॉक्टर नहीं है, वो आपको पर्चों में तो मिलेगी कि वो है, उनका अपॉइंटमेंट तो होगी लेकिन बैठी हुई नहीं होगी। जब हमें उन्हें मेडिकल करना होगा तो वो उन्हें रहीमिया खान लेकर जाएंगे या सक्खर लेके आएंगे, तब तक जो औरत को गोली लगती है या वो जख्मी हो जाती है, वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे मसाइल से औरतों के लिए मेडिकल पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जो है वो अगर एक लेडी डॉक्टर अपॉइंटमेंट उनकी हुई है और यहाँ नहीं बैठी, वो अपर सिंध में नहीं बैठी, उन देहात में नहीं बैठी और वो कराची और हैदराबाद में बैठी हुई है, और किन इन्फ्लुएंसेस के तहत वो बैठी हुई है ये आप सबको पता है कि वही MNA MPA वो कहते हैं कि भाई आप लीव पे चली जाएं। वो कितने भी हम जो है जल्द से जुलूस कर लें, एहतजाज कर लें, लेकिन उनका वो जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहा है। आहिस्ता जो है ये नहीं कि जो एक्टिविस्ट हैं काम कर रहे हैं वो कम हो रही है, लेकिन वो आहिस्ता स्लोली प्रोसेस चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये जो कड़ी कराची से लेकर सक्खर तक, घोटकी तक, कश्मीर तक बनी हुई है कि हम फ्रूटफुल नताइज ज़रूर 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल लग सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी साथ दे, इस पे प्रोग्राम होने चाहिए, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। आप बुलाएं, उन वडेरों को बुलाएं, आप सरदारों को बुलाएं, आप क्वेश्चन मार्क करें कि आप MNA बने हुए हैं, आप MPA बने हुए हैं और आपके ज़िले में जो है इतनी औरतें कत्ल हो रही हैं, हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, और जो वडेरा चाहे किसी की बेटी को, हारी की बेटी को उठा लेता है, वो इतना पावरफुल होता है कि कानून भी वो खामोश हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे ख्याल में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सबको करने चाहिए। और ये जो है खामोशी का नहीं है, जितना हम खामोश रहेंगे हमारा लॉस होगा। औरतों के मसाइल से हमारे मसाइल, जैसे मैडम अनीस ने कहा, नहीं है आप सबके मसाइल से, वो आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है। तो मेरे ख्याल में आप उन केसों को रिपोर्ट भी करें और वो जो फॉलो अप भी दें, वो फॉलो अप नहीं होता। 1 वीक जो है वो केस चलता है, मीडिया की जीनत बनता है, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि मीडिया सवाल करती है कि एक्टिविस्ट क्या कर रही है। एक्टिविस्ट उन्हें देख रही होती हैं। कमीशन हमारा पोर्टल बना हुआ है जिसमें
में कमीशंस या एक्टिविस्ट पूछ रही होती है कि उनका क्या हुआ, वो सवालिया निशान करती हैं, लेकिन हम ये आपसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं फॉलो अप देते, आपसे वो जो औरत है वो कत्ल की जाती है, आप क्यों भूल जाते हैं उन केसेस में, वो जो कोर्ट में उनकी जो पेशियाँ होती हैं उसमें इन्हें फॉलो अप नहीं दिया जाता, उस अक्यूज के खिलाफ इतना पावरफुली नहीं बोला जाता। तो कुछ कमियाँ जो है हर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, तभी ये मसाइल हो रहे हैं। अनीता बात करेंगी। सवाल या निशान है कि वो वजूद क्यों रखता है। कारोकारी मीन्स ब्लैक, वो जो अफ्रीका से गुलाम आए थे उनका कलर ब्लैक था, उसके नाम से वो जो गुलाम थे वो गुलामान, उस वजह से वो नाम रखे कारोकारी। जो काम नेगेटिव में जाते हैं उसको ब्लैक कहते हैं, तो वही नाम से हम औरतों के जो भी काम करते हैं उसको कारी के नाम से मशहूर किया जाता है। तो खानाकारी खुद नाम ये इस मॉडर्न दौर में इसका वजूद होना ही एक हमारे लिए सवाल या निशान है कि हम किस दौर में रह रहे हैं, 2023 में हैं या वो जंगल के ज़माने में है या गुलामाना दौर में है। ये गुलामाने समाज की निशानी है। हमारी माइंड, हमारा सोच अभी तक उसमें क्यों अटका हुआ है? क्या हम इतने भी नहीं जानते? क्या हमारी औरत की आज़ादी इतनी यहाँ तक भी नहीं है कि अपनी पसंद की शादी पे चल रहा है। और आपको एक अहम बात बताऊं जो हमने लिंकेज दी है ह्यूमन राइट्स की किताबों में कि ये हार्वेस्ट सीजन में होता है ज़्यादातर। जब भी होता है हार्वेस्ट सीजन में, अब गंदम जैसे आजकल गंदम उतर रही है, तो इस जमाने में 2-3 ग्रुपों की ईद हो जाती है। एक तो लोगों की छोटी छोटी दुश्मनियां हैं, उसको निभाने के लिए सबसे आसान तरीन इल्जाम कारोकारियां। दूसरा ये है कि उसमें पुलिस को बहुत पैसा मिलता है, उसमें जगह वडेरे को ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो जो बंदा कत्ल करता है, वो जो कम्युनिटियाँ एक दूसरे को कत्ल करती हैं, वो विद इन कम्युनिटियाँ एक दूसरे को कत्ल करती हैं, वो सिर्फ ऐसे उम्मीद में कत्ल करती हैं कि सहारे से अच्छा भला पैसा मिल जाएगा, मैं आज़ाद भी हो जाऊँगा और मेरी नाक भी ऊपर हो जाएगी। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है, जिस तरह मैडम आपने कहा, एक तो इन वडेरों को जमा करो। रियासत ने तो उनको वडेरा बना के रखा हुआ है। नंबर 1 अभी जो इसकी किताब आई है आसमा फैज की, उसमें उसने खुला कहा है कि रियासत की पॉलिसी है कि वडेरों का सर्वाइव करो, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को की ताकत को नहीं देखना चाहती, इसलिए वडेरों को पाल रही है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि और इंसान है ना, रियासत का शहरी है ना, तो ये केस रियासत की तरफ से होना चाहिए। आपको याद होगा जो 90s के जमाने में आप और हम मिलकर काम करते थे, तो रियासत पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मर्डर हो जाता है तो उसका जो विलन होता है जो वो रियासत होती है। तो रियासत के शहरी का मर्डर हुआ है, किसी की औरत का नहीं हुआ, किसी के मर्द का नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि अभी भी आप जैसे कमीशन में है, तो जब तक ये कमा, पहले तो 90s के ज़माने में सबसे बड़ा मसला ये होता था कि हम लोग चंद अखबार वाले थे, उनको थ्रेट होता था, मारे गए कि तुम हमारे कबीलों को बदनाम कर रहे हो कारोबारी केस में। फिर आपको याद होगा बड़ी लड़ाई के बाद 302 का केस लगा। अभी तो आपने बहुत अच्छे कवानीन देख रहे हैं, वो कवानीन तब्दील कराने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो सजेशन है वो सबसे पहले ये है कि पहले औरत को इंसान को डिक्लेयर किया जाए और वो शहरी की हैसियत में कवानीन उसको सपोर्ट करें। मेन वजह यही होती है कि वही लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर वक्त तो मैं नहीं करूँगी। कारोबारी के हवाले से कई सालों से काम हो रहा है।
इन्होंने और मैं खुद भी इस सिलसिले में कई बार मुख्तलिफ शहरों का मैंने दौरा किया है और अपना माना। तो मैंने ये कहा कि अगर सिंधियों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आनर के लिंक पर लिखने से और उसको जो है पेश करने से सिंधी को बदनाम होती है, मैंने उस वक्त कहा, उन लोगों को कहा। और मैंने साथ साथ क्या कहा कि अगर जिन लोगों की ऐसी सोच नहीं है वो जीते रहे और जिए से। तो इस तरह की अगर मैं उन मनफी सोचों को भी अगर आप समझ रहे हैं कि जो लोग मनफी सोच रहे हैं और आनर के लिंक को नहीं मान रहे, अगर मैं उनके लिए भी कहूँ कि वो काबिल कबूल है तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। उनके लिए मेरे अल्फाज अभी भी वही हैं जो मनफी सोच रखते हैं और इस चीज़ को डिनाई करते हैं। बाकी ये रहा कि सिर्फ स्मार्टफोन जो है वो नहीं इसको कारोबार नहीं करती और सिर्फ बलोच करते हैं। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं जो मल्लाहों ने भी की हैं, समों ने भी की हैं, नारिक ने भी की हैं। और अब ये इतना ज़्यादा होगा और ये सूरज को जो है ना अगर हम क्या वो जो है इसके अंदर मटेर के नीचे यहाँ खारे जेठा से जिले कहने से हकीकतें जो है वो नहीं छुप सकती। ये मुझे कोई हज़ारों लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट हैं, जो बलोच नहीं है, वो आनर के लिए कर रहे हैं, आनर के लिए हो रहा है और उससे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस तरह के मेरा खुद मेरे अपने गांव में जो है वो आनर के लिए का वाक़या हुआ है। हम लोगों ने बलोच भी नहीं है, सैयद भी नहीं है, हम लोग समाज। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपके डेटा है